Hello students, welcome to your maths class. Today we will learn about concept of comparison and comparison of one-digit numbers. But before going further, I want to recite you a short story. There was a crocodile. He always likes to eat things that are more in number. One day, he saw eggs at two places. At one place, there were 7 and at another place, 5. Can you tell me which number eggs will crocodile eat? 7 or 5? Yes, 7. Because he always likes to eat things that are more in number. Kids, do you know why I am telling you this? Because today we are going to study about comparison. What is comparison? Comparison means to find whether one number is greater than another number, smaller or less than another number, and equal to another number. Now tell me, crocodile ने number of 7 eggs ही क्यों खाए? Why not 5? Because 7 is greater than 5. और crocodile को तो हमेशा वही चीज अच्छी लगती है जो क्वांटिटी में ज्यादा हो. You know kids, you can also tell that which is smaller, greater or equal to another number or number of objects through some symbols. Which are these? There are 3 symbols. The symbol is used to show the number or number of objects that are greater than or more than the another. This symbol is used to show the number or number of objects that are smaller or less than the another. This symbol is used to show the number or number of objects that are equal to the another. Let's understand through some examples. Shivani has 9 balls and Shivangi has 8. Now tell me who has more balls? Of course, Shivani has more balls, 9. अब अगर हमें ये शो करना है कि 9 8 से बिगर है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? यस, ग्रेटर देन. और अगर आपको ये बताना हो who got less balls तब आप कौन सा सिंबल यूज करोगे? यस, स्मॉलर देन. जिससे हमें ये पता चलता है कि 8 9 से स्मॉलर है और 9 8 से बिगर. किड्स, अगर क्वेश्चन दिया हो which is smaller or greater number तब तो आप आसानी से कर लोगे, मीन साइन बना लोगे. बट व्हाट इफ अगर ओनली नंबर्स दे दिए जाए और क्वेश्चंस में राइट हो put greater than, smaller than or equal. Remember, crocodile always opens its mouth to eat the greater number or number of objects. जो भी नंबर greater होगा उस तरफ crocodile का माउथ ओपन रहेगा और जो नंबर स्मॉलर होगा उस तरफ crocodile का माउथ क्लोज रहेगा. चाहे ये नंबर्स लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, नो प्रॉब्लम. एग्जांपल, इन अ गार्डन देयर वर 3 मैंगोज एंड 6 guavas tree. So which trees are more? Yes, guavas. And which trees are less? Mangoes. अब अगर नंबर ऑफ ट्रीज की प्लेस पर केवल नंबर्स दिए हो, एग्जांपल 3-6, तो आप यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे? हम यहाँ स्मॉलर देन का नंबर यूज करेंगे. अगर भूल भी जाते हो तो कौन सा सिंबल यूज करना है? जस्ट रिमेंबर, क्रोकोडाइल का माउथ उस साइड ओपन होगा जिस साइड ग्रेटर नंबर हो और उस साइड क्लोज होगा जिस साइड स्मॉलर नंबर होता है. सो हियर वी सी 6 इज ग्रेटर, तो क्रोकोडाइल का माउथ 6 की तरफ ओपन है एंड 3 इज स्मॉलर, तो उसका माउथ 3 की तरफ क्लोज है. अब अगर हम 6 को लेफ्ट साइड और 3 को राइट साइड कर दे तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? यस, ग्रेटर देन का. अगर कंफ्यूज हो तो रिमेंबर, crocodile always likes to eat things that are more in number. So here you can see crocodile ने right side means smaller number 3 की तरफ अपना माउथ क्लोज किया है और left side means greater number 6 की तरफ अपना माउथ ओपन किया. But I wanna ask you something. Observe these two groups. There are 6 ladybirds in group A and 6 ladybirds in group B also. Now tell me which group would the crocodile like to eat? A or B? Crocodile दोनों में से कोई भी ग्रुप पे ईट करेगा because crocodile तो हमेशा 1 नंबर से ज्यादा नंबर ईट करता है और यहाँ पर तो दोनों में 6 ही हैं. So kids, the two groups के नंबर्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो, they are equal means same. So to show they are equal, हम इस सिंबल का यूज करते हैं. Let's take one more example. There are 3 tortoises
in group 1 and 3 in group 2. Are they equal? Yes, of course they are equal. अब बताओ कौन से सिंबल यूज करें, क्रोकोडाइल या फिर इक्वल? यूज इक्वल. तब हम क्रोकोडाइल वाला कब यूज करते हैं? जब कोई वन नंबर अनदर नंबर से स्मॉलर या ग्रेटर हो, तब हम क्रोकोडाइल वाला ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का सिंबल यूज करते हैं. आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन एज वेल एज कंपैरिजन ऑफ वन डिजिट नंबर्स अच्छे समझ में आ गया होगा. अब आप ये मत सोचना इट्स प्रैक्टिस टाइम. एक्चुअली देयर इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग लेफ्ट स्टिल, दैट इज कंपैरिजन ऑन नंबर. व्हाट इज नंबर लाइन? एक ऐसी लाइन जो लेफ्ट टू राइट नंबर्स रिप्रेजेंट करती है, उसे हम नंबर लाइन कहते हैं. इसका यूज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन में भी करते हैं. लेट्स सी इसका यूज कंपैरिजन में कैसे होता है. As you can see on the screen, numbers are arranged from smaller to greater. 1, 2, 3 and so on. Example हमारा क्वेश्चन है 8-6. तो हम यहाँ कौन सी सिंबल यूज करेंगे इस नंबर लाइन को देखकर? रिमेम्बर, चाहे वो कोई भी नंबर 8 या 6, जो नंबर्स 8 या 6 के लेफ्ट साइड होंगे वो स्मॉलर होंगे, और जो नंबर्स 8 या 6 के राइट साइड होंगे वो नंबर ग्रेटर होंगे. एग्जाम्पल है हमारा 8-6. अब बताओ नंबर लाइन में 8 6 के लेफ्ट साइड आ रहा है या राइट साइड? यस, राइट साइड. इट मींस 8 इज ग्रेटर देन 6. और 6 8 के लेफ्ट साइड आ रहा है या राइट साइड? यस, लेफ्ट साइड. इट मींस 6 इज स्मॉलर देन. सो किड्स, अब यहाँ 8 ग्रेटर है तो क्रोकोडाइल का माउथ किस तरफ ओपन होगा? यस, 8 की साइड. और किस तरफ क्लोज होगा? 6 की साइड. मीन्स यहाँ पर हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल 4-9. अब नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके बताओ 4 9 के लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड? यस, लेफ्ट साइड. मीन्स 4 इज स्मॉलर देन 9 और 9 4 के राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड? यस, राइट साइड. इट मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 4. तो अगर हमें ये शो करना है कि 4 9 से स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे? क्रोकोडाइल का माउथ किस तरफ ओपन रहेगा और किस तरफ क्लोज? यस, 4 की साइड क्लोज और 9 की साइड ओपन. मींस वी विल यूज स्मॉलर देन सिंबल. एंड व्हाट इफ क्वेश्चन विल बी 3-3? तब आप नंबर लाइन यूज करके कैसे बताओगे कि क्रोकोडाइल का माउथ किस साइड ओपन रहेगा और किस साइड क्लोज? अब नंबर में दोनों 3 तो सेम प्लेस पर ही है. इट मींस 3 and 3 आर सेम, इक्वल. तो जब भी कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर इक्वल होते हैं वहाँ हम इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बोथ नंबर आर सेम, इक्वल. नॉट टेल मी अगेन, नंबर लाइंस में नंबर किसी भी नंबर के जो लेफ्ट साइड नंबर्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं या ग्रेटर? यस, स्मॉलर. और जो नंबर्स राइट साइड होते हैं वो स्मॉलर होते हैं ग्रेटर? यस, ग्रेटर. And what does this symbol stands for? Greater than. What does this symbol stands for? Smaller than. And what about this? Equal. So kids, that's it for today. Now it's your practice. Question is, complete the page number 76 and 78 in your book. That's it for today, kids. We'll meet again in next video.